Initial velocity u. Suppose the when particle reaches at point P, its velocity is v, and when reaches to P, the vertical distance moved by the particle is h. मान लेते यहाँ से जाएगा तो एच हाइट तक कितना हॉरिजॉन्टल से अपने इनिशियल पॉइंट कितना हाइट चढ़ा, इट इज एच. पूरी रेडियस अगर आर है तो ये होगा आर माइनस एच. इज इट क्लियर? दिस इज आर माइनस एच. इफ according to conservation of energy, total energy at A is equal to total energy at P. ध्यान रखना, जो एनर्जी यहाँ होगी वही एनर्जी यहाँ पे होगी. According to conservation of energy, total energy at A is equal to total energy at P. हमारी जो एनर्जी यहाँ से दी जा रही है वही एनर्जी यहाँ तक पूरा काम कर रही है. तो लिखेंगे according to conservation of energy. कुछ लिखो भी नहीं, थोड़ा सा लिख लो थोड़ा सा. Suppose a stone is tied with a thread. Stone is tied with a thread. If horizontal velocity u is given to the stone, as a result, stone revolves in a vertical circle. Stones revolve in a vertical circle. If the stone reaches at point P, velocity becomes v. According to velocity becomes v. According to conservation of momentum, total energy at A, total energy at A is equal to total energy at P. Total energy at P. Total energy at A, it is half mu square. इस पॉइंट P पर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों एनर्जी होगी ना, तो इट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh प्लस mgh. So m cancelled out here, v square it is equal to u square minus 2gh. Here v square is equal to u square minus 2gh. ये u है, so v is equal to root u square minus 2gh. So velocity at P will be this, v u square minus 2gh. At point P, the tension and the cos theta, are in opposite direction. So T minus mg cos theta, provides necessary centripetal force, as a result T minus mg cos theta, it is equal to mv square upon r. r यहाँ पे रेडियस से ध्यान रखें, या लेंथ ऑफ द स्टोन, तो उसका स्ट्रिंग. Therefore here T is equal to mg cos theta plus mv square upon r. Here mg, what is cos theta? Cos theta, if you consider here, cos theta r minus h upon r. देख लेना, OP is base upon hypotenuse, so it is cos theta r minus h upon r. OP ना,
तो लिख सकते हो यहाँ पे अभी तो एम जी कॉस थीटा आर माइनस एच अपॉन आर प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। कॉस थीटा की वैल्यू ध्यान देना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा आर माइनस एच है, हाइपोटेन्यूज इज आर। तो हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर एम जी आर माइनस एच अपॉन आर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। वी स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू एम जी आर माइनस एच अपॉन आर प्लस एम अपॉन आर। व्हाट इज द वी स्क्वायर? यू स्क्वायर माइनस 2gh, u square minus 2gh, and therefore from that tension T is equal to, here m upon r taken out common, m upon r in bracket you see here g r minus r, g r minus gh, g r minus gh plus u square minus 2gh, u square minus 2gh. Is it clear to us? M upon r taken out g r minus gh plus m upon r has been taken to u square minus 2gh. Is it clear to all? So this tension T is equal to m upon r, here u square minus 3gh plus gr। ये हमारा टेंशन का एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया। टेंशन अब लिखेंगे टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन का मतलब कि H जीरो हो जाएगा ना, जब यहाँ होगा तो H जीरो। तो लिखेंगे टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, here TL, now put H is equal to 0, ध्यान रखो H is equal to 0। तो TL लिखेंगे, TL it is m upon r ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस gr, H 0 पुट करेंगे u स्क्वायर, ये क्लियर करना, u स्क्वायर प्लस gr। ये हमारे पास टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, ये u स्क्वायर प्लस gr। इज इट क्लियर? टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट, ये आता है डेफिनेशन ध्यान रखना। तो लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टीएनसी, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट पर जब हम ले जाएंगे, वी हैव द टेंशन हियर T, यहाँ पे लिखेंगे T इज इक्वल टू m अपॉन r and u square minus 3gh plus gr। हाईएस्ट पॉइंट की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ की वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे
तो अब हमारे पास एच इज इक्वल टू ए आर होगा, ये भी तो लोएस्ट पॉइंट कितना पहुंचेगा, एच इज इक्वल टू 2r। तो हम पुट करेंगे एच इज इक्वल टू 2r, तो वैल्यू हो जाती है, देखना टी एच लिखेंगे, पुट एच इट इज इक्वल टू 2r एंड व्हाट यू गेट हियर, टी एच it is equal to m upon r u square minus 3g and h is equal to 2r plus gr, and what you get here, it is th, it is m upon r u square minus 6gr plus gr, u square minus 5gr. This is the tension at the highest point. Here you see, what is the difference between the tension lowest and the highest? So now TL minus TH, TL minus TH, इतना आता है। Now TL minus TH, वैल्यू हमारे पास हो जाएगी TL m अपॉन r u स्क्वायर प्लस gr माइनस m अपॉन r u स्क्वायर माइनस 5gr, क्लियर, u स्क्वायर माइनस 5gr। सो m अपॉन r टेक आउट कॉमन, u स्क्वायर प्लस gr माइनस u स्क्वायर प्लस 5gr, clear? Now you see it is कुछ कटेगा ना, हाँ u तो चला गया, 6gr, it means m upon r into 6gr, r कैंसिल 6mg, मतलब ये हो गया TL माइनस TH, कितना हाईएस्ट पॉइंट से टेंशन 6mg अधिक हो जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा स्टोन के वेट का 6 टाइम अधिक होगा देन द हाईएस्ट पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन दिस इज, इट मींस स्टोन का जितना वेट होगा उसके वेट का 6 टाइम टेंशन अधिक होगा एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा टेंशन होता है, ऊपर जाएगा टेंशन बहुत कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? हियर दिस इज द टेंशन। नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट? लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो लोएस्ट वेलोसिटी, वी विल राइट द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट है m अपॉन और वेलोसिटी, तो ये हमारे पास जो टेंशन है लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होने के लिए कितना वेलोसिटी होना चाहिए? तो इतना ऊपर जब जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये टेंशन एटलीस्ट इस पर इतनी वेलोसिटी हमें जरूर प्रोवाइड होना चाहिए कि ऊपर जा करके यह टेंशन कम से कम 0 या 0 से अधिक होना चाहिए। मीन्स एट द हाईएस्ट पॉइंट लिखेंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट TH should be greater or equal to 0. TH should be greater or equal to 0. मतलब इतना वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाए कि ऊपर का जो टेंशन है ऐसे ना हो जाए, गिर जाता है ना ऐसे, तो ऐसे हो जाए, मतलब टेंशन ऐसे तनी हुई रही हो, ऐसे जाके गिरे। ऐसे अगर हम ऐसे दे रहे हैं, इतना वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि पूरा कंप्लीट सर्किल बन जाए, इतना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस यहाँ से जाए और डोरी ढीली होकर गिर जाए, इतना नहीं होना। मीन्स TH शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 and here TH is m upon r u square minus 5gr
it is greater or equal to 0. It means the u square greater or equal to 5gr, so u greater or equal to root 5gr. It means the minimum velocity at the lowest point for the complete circuit, that is the minimum velocity at the lowest point to complete the circle will be u is equal to root 5gr. u is equal to रूट मिनिमम इतना होना चाहिए तब वह कंप्लीट सर्किल करेगा, इतना होना चाहिए रूट 5gr रेडियस के 5 टाइम्स से, ये स्क्वायर रूट पे इतना होना चाहिए। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट देखना, वेलोसिटी एट highest point, velocity at highest point, see this velocity at highest point, तो हमारे पास हो जाएगा, और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है v इज इक्वल टू रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। पी पॉइंट पे वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया, तो हाईएस्ट पर जब ले जाएंगे तो u की मिनिमम वेलोसिटी पुट करेंगे और h इज इक्वल टू 2r। इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास रूट 5gr हियर, रूट 5gr मिनिमम वेलोसिटी माइनस 2g इनटू 2r, h इज इक्वल टू 2r। क्योंकि हम तभी मिनिमम पहुंचे देंगे तभी हाईएस्ट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं। तो हमने कुछ मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं। नहीं, हम हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, जब इस पर कम से कम इतनी वेलोसिटी दे कि यह पूरा कंप्लीट सर्किट करेगा सर्किट, तो हम मिनिमम मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। हाँ, मेरे कहने का मतलब हम लोग ऊपर पे मिनिमम पॉइंट ढूंढ रहे हैं ना, मिनिमम वेलोसिटी ऊपर कितनी, जब इस पर हम u देंगे तो उस पर v कितना होगा, हमें ये चेक करना है वही। हाँ, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा इतना वेलोसिटी लोएस्ट पे दिया जाए कि कम से कम हाईएस्ट तक पहुंचे, अगर हम इतने दे तो ऐसे रह जाएगा ना, इतना ना पहुंचना चाहिए, तो पहुंचेगा जब इतना दे कि ऊपर पहुंचे, तो ऊपर हमें कंप्लीट सर्किट के लिए कितना होना चाहिए एटलीस्ट, अगर उतना ऊपर नहीं पहुंचा तो फिर डोरी ढीली होकर ऐसे गिर जाएगा, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली जनरल थियरी में हम बता दे रहे हैं, जब बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वहाँ टेंशन को कैलकुलेट किया जाता है एक पॉइंट पर, तो बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसेस इस्टेब्लिश की जाती है। अभी तो क्लास रूम है, इसमें एक स्टोन लेकर के बता दिया जा रहा है, वहाँ स्टोन थोड़ा नचाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो एक बेस बताया जा रहा है। यहाँ पे लोएस्ट वेलोसिटी अगर इतना दिया जाएगा तो हाईएस्ट पर कितनी वेलोसिटी होगी, दिस इज इक्वल टू 5gr minus 4gr, it is equal to root gr। ये ध्यान रखो, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी इतना रूट gr। इसके इतना कैलकुलेशन हमारा है कि इतना होना चाहिए एटलीस्ट। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर इतनी वेलोसिटी नहीं रहेगी तो ये पिस्टन यहीं से घर से गिर जाएगा, फिर पूरा घूमेगा नहीं, कंप्लीट सर्किल नहीं बनेगी। समझ में आने बात? हाँ, तो ये चीज है। और ये जब भी आता है एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा ये पूरा डेरिवेशन, समझ आ रहा? और अभी देख रहा हूँ 2 एग्जाम है, उसको आप